Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot Kaur and today's topic is consumer equilibrium that we will do with the help of indifference curve analysis, in which we will discuss what is indifference curve, assumptions of the indifference curve, properties, marginal rate of substitution, consumer budget and consumer equilibrium. Let's go to the brief description of indifference curve. The concept of indifference curve was first developed by British economist Francis Edgeworth and was put into use by Italian economist Pareto during the early 20th century. The concept of cardinal utility was used by Marshall to define consumers' equilibrium. That we have already done. Marginal utility analysis that was given by Marshall. Cardinal utility means consumer could measure the satisfaction derived by consumption of any good or service in terms of number and unit of that measurement in utils or money. Whenever consumer consume any good or service, उसकी want satisfying part of that good or service that is measured in terms of utils means मनी टर्म्स में या यूटिल में वो मेजर करता है कि उसकी सेटिस्फैक्शन कितनी उससे मिल रही है. That is cardinal utility analysis. Whereas ordinal utility means giving the rank to the utility derived by the consumption of goods and services. अगर goods and services consume करने से consumer util की बजाय satisfaction को rank या order दे देता है, that this is the first, this is second, this is third, अपनी preference बता देता है, then this is known as ordinal utility, and this concept was given by Dr. Economist Hicks. An indifference curve is a locus of points, particular combinations of goods which yield the same utility to the consumer so that he is indifferent as to the particular combination he consumes, according to Goodsonis. अब एक इकोनॉमिस्ट गुडसोनिस है, उसने क्या बताया कि इंडिफरेंस कर्व है क्या. विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी वी मेजर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. लेकिन जब ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व की बात आएगी. ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजर करते हैं तो वी विल गेट एन इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का सम टोटल है. पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कौन से पॉइंट्स? जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, मीन्स दो गुड्स को कंबाइन करके जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उनका कॉम्बिनेशन वो बना लेता है, विच यील्ड सेम यूटिलिटी टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर को सभी कॉम्बिनेशन से यूटिलिटी जो मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सेम लेवल की है, सो दैट ही इज इनडिफरेंट. वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेकर इनडिफरेंट है, चाहे वो ए कंज्यूम कर ले चाहे बी कंज्यूम कर ले, ही इज गोइंग और शी इज गोइंग टू गेट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेम according to the particular combination. अब cardinal versus ordinal difference we have already done. Let's get through it again. Meaning में ordinal utility क्या है? The utility where user satisfaction of commodity is evaluated by preference but cannot be written in numbers. This is realistic concept जिसमें हम कहते हैं कोई चीज़ हमने consume की तो we can tell कि हाँ I am preferring this good or not according to the satisfaction derived from the same good or service. Cardinal में क्या है? The utility where user satisfaction is derived by a consumer from its consumption and can be expressed in numerical unit. Cardinal utility में utility को या satisfaction को हम जो जितनी भी derive कर रहे हैं उससे we are going to express in numerical units. Numbers में हम count करते हैं. But this is not realistic as such. This is difficult. अब ऑर्डिनल यूटिलिटी इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच जिसमें हम प्रेफरेंस या रैंक्स दे रहे हैं, फर्स्ट रैंक टू दिस कॉम्बिनेशन, सेकंड रैंक दिस कॉम्बिनेशन. लेकिन कार्डिनल में हम नंबर्स अलॉट कर देते हैं. फर्स्ट इसको मीन्स 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन यहाँ से डिराइव हुई, 8 यूटिल सेटिस्फैक्शन यहाँ से डिराइव हुई. यूटिल्स एंड रैंक, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ. अब ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं, लेकिन कार्डिनल में हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे. जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो ऑर्डिनल यूटिलिटी को रिलाय करते हैं एंड दे आर प्रमोटिंग द सेम, जिसके बेस के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. बट ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को ध्यान में रख के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? एन इंडिफरेंस कर्व with respect to two commodities is a graph.
इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग, बस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसकी, टू commodities showing those combination of the two commodities that leave consumer equally well off or equally satisfied, hence indifferent in having any combination on the curve. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किस चीज की, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज, दो कॉमोडिटीज ली, एक एक्स एक्सिस पे ले ली, एक वाई एक्सिस पे ले ली, दोनों के कॉम्बिनेशन बनाए विद द गिवन इनकम एंड गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स. कौन कौन से कॉम्बिनेशन वो बाय कर सकता है उनको हमने ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया, और जो भी कॉम्बिनेशन वो बाय कर सकता है सब कॉम्बिनेशन से उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और उन कॉम्बिनेशन में वो इनडिफरेंट है, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन बाय कर ले चाहे बी कंज्यूम कर ले, satisfaction is same. An indifference curve shows the combination of two goods that give a consumer equal satisfaction and utility, thereby making consumer indifferent. Any combination of two goods on an indifference curve gives equal level of satisfaction. The consumer is indifferent to any combination he consumes. Thus, an indifference curve is also known as equal satisfaction curve or iso-utility curve. इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है सभी कॉम्बिनेशन से, सो इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व ऑल्सो या आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं. मीन्स के सभी कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है. Indifference curves are heuristic devices used in contemporary microeconomics to demonstrate consumer preference and limitations of a budget. Economists have adopted the principles of indifference curves in the study of welfare economics. अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है, एंड गिवन हिज इनकम एंड लिमिटेड बजट वो क्या कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, उसके बेस पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट. Along the curve, consumer has an equal preference for combination of goods shown, that is indifferent about any combination of good on the curve. This is very important. सभी combination चाहे equal satisfaction दे रहे हैं, बट एक चीज़ indifference क्यों बोला इसको, indifference इसीलिए बोला indifference curve को कि सभी combination में consumer is indifferent, चाहे उसको A combination दे दो, B दे दो या C दे दो, satisfaction level same है, so उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. Given the level of income, price of the goods, जो उसकी अप्रोच में है उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन वो लेगा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा. सो ही इज इंडिफरेंट. दिस इज द रीजन द कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. वी हैव सम कंसेप्ट रिगार्डिंग द सेम. फर्स्ट, इंडिफरेंस शेड्यूल. इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है, टैबुलर फॉर्म में हम शो कर रहे हैं क्या. इट इंडिकेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन. शेड्यूल में क्या हम शो करेंगे, टैबुलर फॉर्म में हमने टेबल बना दिया कि ये दो कमोडिटीज़ हैं, इन दोनों कमोडिटीज़ के क्या क्या कॉम्बिनेशन कंज्यूमर यूज़ करता है ताकि उसे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम मिले. इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. सभी इंडिफरेंस कर्व्स जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है गुड्स के कॉम्बिनेशन को, उसके अकॉर्डिंगली जो बनते हैं कर्व्स, उन सभी का जो सेट हम शो करते हैं, इट इज़ अ मैप, indifference map. Then we have a concept named as marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution है क्या? It is the rate at which consumer is willing to substitute one good for another, or the rate of satisfies good Y for good X. जब हम एक गुड कंज्यूम कर रहे हैं से X, दूसरी कंज्यूम कर रहे हैं Y. अब हम Y ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो X का कुछ छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड मीन्स, इनकम लिमिटेड है हमारे पास, तो Y ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए X को छोड़ रहे हैं. सो दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. क्या है, द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो कंज्यूमर विलिंगली छोड़ रहा है किसका, X का छोड़ के, सो दैट वो Y का ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर सके. सो इट इज़ रेट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ गुड Y ओवर X. अगर X ज़्यादा बाय करने के लिए Y को सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये क्या होगा, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X. ये मैथमेटिकली हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि Y का कितना चेंज आया और X का कितना चेंज आया, ये रेशियो में आएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. बजट सेट. It represents those combinations of consumption bundles that are available to the consumer given his or her level of income and at existing market prices.
जब मार्केट प्राइसेस प्रिवेलेंट करंट चल रही हैं, लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर की गिवन है, उस केस में वो जो कॉम्बिनेशन गुड्स के बाय कर रहा है वो उसके बजट सेट के अंदर आता है, उसे कहते हैं बजट सेट। जो कॉम्बिनेशन वो बाय कर रहा है गिवन हिज लेवल ऑफ इनकम एंड गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। अब बजट लाइन क्या है? इट शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड विद इफ एंटायर मनी इनकम इज स्पेंट। कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम है, वो सभी स्पेंड कर देता है किसके ऊपर? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बाय करने पे। तो उसको ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी नोन एज बजट लाइन या प्राइस लाइन। नाउ दिस इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है? On the left hand side we can see this is indifference schedule, the table showing different combinations giving equal satisfaction. Let us see, we have combination A B C D E, apples and oranges. दो commodity वो consume कर रहा है, apple and oranges, both are fruits. In case consumer is going to buy 1 unit of apple and 22 units of oranges, so he will be here at point A. We can represent on x-axis we have apples and on y-axis we have oranges. दोनों की quantity ले ली। अब combination को कैसे express करेंगे? We have here apples 1, 2, 3, 4, 5, 6 and on y-axis we have 0, 2, 4, 6 up to 22 we have oranges. तो first हमारा कहाँ पे आएगा? जब apple हमारा 1 है and हमारा ऑरेंजेस 22 यूनिट्स है, तो ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। देन शेड्यूल में सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? जब वो कंज्यूमर 2 एप्पल कंज्यूम करता है तो उसे ऑरेंजेस के कुछ यूनिट्स छोड़ने पड़ रहे हैं, तो वो 14 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस लेता है। 14 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल। देन सी कॉम्बिनेशन में क्या है? एप्पल का 1 यूनिट और इंक्रीज हो गया, लेकिन ऑरेंजेस और कम हो जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा ना उसे कुछ। एक चीज़ ज़्यादा लेने के लिए दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी विद लिमिटेड मीन्स। तो 3 यूनिट्स ऑफ उसने लिए एप्पल एंड ऑरेंजेस के 10 यूनिट्स। लाइकवाइज डी में उसने लिए 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल, ऑरेंजेस छोड़े तो 8 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस ले लिया। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन में 5 यूनिट्स लिए उसने किसके? ऑरेंजेस के, एंड 7 यूनिट्स उसने ले लिए किसके? अदर गुड। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज नोन एज, ये कर्व जो बनेगा हमारा इसे हम इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। चाहे वो ए कॉम्बिनेशन ले रहा है जिसमें 1 एप्पल 22 ऑरेंजेस ले रहा है, या सी कॉम्बिनेशन ले रहा है 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, दोनों में ही इज इंडिफरेंट क्योंकि दोनों में ही उसे क्या मिल रही है? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चाहे वो बी ले, सी ले, डी या ई, कोई भी कॉम्बिनेशन वो बाय करता है, ही इज इंडिफरेंट बिटवीन दीज बिकॉज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। सो कोई भी चूज कर सकता है। दिस इज इंडिफरेंस कर्व। ये कर्व क्या है? लोकस ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच डिराइव इक्वल सेटिस्फेक्शन। सो ग्राफिकली हम कैसे इसे शो करेंगे? ऑन अ ग्राफ इंडिफरेंस कर्व इज अ लिंक बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज विच कंज्यूमर regards to yield equal utility. Simply an indifference curve is the graphical presentation of indifference schedule. On the left hand side we can see this is a table जिसमें हमने बनाया combination बना लिए मैंगोज के, ऑरेंजेस के, and this is MRS marginal rate of substitution। जो मैंने बताया marginal rate of substitution क्या है? एक कमोडिटी का यूनिट वो इंक्रीज करता है तो दूसरी कमोडिटी के कुछ यूनिट्स उसको फोरगो करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। तो एक गुड को ज़्यादा बाय करने के लिए दूसरे यूनिट वो जो सब्सटीट्यूट कर रहा है तो उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सो इसे अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव मैंगोज 1, 2, 3, 4, 5 we have mangoes, and on y axis we have oranges. We can have here 2, 4, 6,
8, ऐसे हम इसको शो करते जाएंगे आगे सेम लेवल पे लेकर। अगर ऑरेंज फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एक मैंगो ले रहा है और 22 ऑरेंजेस ले रहा है तो ही विल बी हियर एट दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहाँ पे आएगा उसका? 2 मैंगोज, ऑरेंजेस 14। अब ऑरेंजेस कितने छोड़ दिए उसने? 22 माइनस 14, 8। अब एक यूनिट ऑफ मैंगो लेने के लिए 8 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वो सेक्रीफाइस कर रहा है। So he is substituting 8 oranges with 1 unit of mango. So this is our marginal rate of substitution. Next में 14 minus 10, C combination में उसने 14 के बजाय अब 10 ले लिए। तो marginal rate of substitution क्या आ गया? एक यूनिट ऑफ मैंगो बाय करने के लिए 4 यूनिट उसने ऑरेंजेस के सेक्रीफाइस कर दिए। सो 4:1 इज marginal rate of substitution. D combination में अब देखें 4 यूनिट उसने मैंगो के बाय किए, 8 उसने ऑरेंजेस के बाय किए, तो 2:1 हमारे बन जाते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 10 से वो 8 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस पे आ गया। देन ई में 5 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले उसने 8 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस छोड़े, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो ये जो 8, 4, 2, 1 ये rate of substitution it is diminishing. So this is known as marginal rate of substitution, but diminishing marginal rate of substitution. तो indifference curve analysis में जब भी indifference curve बनाएंगे it will be convex to the region. Reason being marginal rate of substitution हमारा हमेशा क्या होगा? diminishing होगा कि sacrifice करने का rate धीरे धीरे कम होता जाएगा, because consumer always want to have more. ज़्यादा हमेशा वो प्रेफर करता है। तो पहले तो उसने नो डाउट मैंगोज का 1 यूनिट और इंक्रीज करने के लिए सब्स्टिट्यूट किए 8 यूनिट्स, लेकिन लेटर ऑन वो सब्स्टिट्यूशन वो कम करता जाएगा बिकॉज उसकी डिज़ायर टू हैव मोर इज ऑलवेज देयर। व्हेन अ पर्सन वांट टू हैव मोर तो उस केस में MRS जो होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड कभी नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन बी डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और जीरो। बट जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व विल बी ऑलवेज कन्वेक्स टू रीजन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इट कैन बी इंक्रीजिंग। इंक्रीज कब होगा वो? जब वो क्या होगा? कनकेव टू द रीजन होगा। लाइक दिस इज अवर ओरिजिन, दिस इज कन्वेक्स, लेकिन ये है कनकेव। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट नेक्स्ट कमोडिटी से एक्स एंड वाई, एक्स का एक यूनिट एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए वो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाई का इंक्रीज करता जा रहा है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वाई सेक्रीफाइस करेगा एक यूनिट ऑफ एक्स लेने के लिए। एंड दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ये आम कम्युनिटी के केस में नहीं होता है। कंज्यूमर इज ऑलवेज इन प्रेफरेंस ऑफ मोर एंड मोर। सो कनकेव टू द रीजन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का बेस नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी उस केस में। लाइक वी से टी एंड कॉफी में बोल देते हैं या पेप्सी एंड कोला बोल देते हैं, तो उस केस में एक यूनिट ऑफ कोला लेने के लिए एक यूनिट ही वो पेप्सी का छोड़ेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। इस केस में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा बट स्ट्रेट लाइन होगी। लाइक वी कैन सी हियर स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स एक यूनिट अगर उसका छोड़ा तो एक ही यूनिट दूसरे का मिलेगा उसे। सो यहाँ पे कांस्टेंट रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा कांस्टेंट। नाउ जीरो, जीरो किस केस में होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? जीरो मीन्स एक यूनिट दूसरा लेने के लिए वो क्या कुछ नहीं छोड़ रहा है। ये कौन सा केस है? ये है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? दे गो साइड बाय साइड। जैसे हम बोल रहे हैं शू की बात करेंगे तो शू दोनों ही लेफ्ट एंड राइट पेयर में चलते हैं, तो वो एक पेयर लेकर क्या करेगा?
कुछ नहीं। सो अगर उसे एक लेना है लेफ्ट तो राइट का भी साथ में लेना पड़ेगा, अगर दो लेने हैं लेफ्ट तो राइट के भी दोनों लेने पड़ेंगे। सो वी से इट इज राइट एंगल्ड हियर, मीन्स एक x का लिया यूनिट तो एक ही y का लिया, अगर दो यूनिट x के लिए तो दो ही y के लेंगे। सो इट इज राइट एंगल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। सो वी कैन डिफरेंट केसेस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिमिनिशिंग नहीं होता है, इट कैन बी इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, जीरो। हाँ, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के केस में लाइक वी डिड इन यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में हमने ये बोला था कि यूटिलिटी जो है कम होती जाती है सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करने से। लाइकवाइज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग क्यों है? रीजन बीइंग कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा प्रेफर करता है, इसलिए जो सेक्रीफाइस का रेट है वो उसका कम होता जाता है व्हेन एडिशनल यूनिट उसने दूसरी कम्युनिटी का अगर लेना है तो। सो दिस इज एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ आवर इंडिफरेंस कर्व, जो हमेशा कन्वेक्स टू रीजन रहेगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक यूनिट उसने एक्स का लिया तो उसे 14 यूनिट y के मिल रहे हैं, अब उसने सेक्रीफाइस करने हैं y के सो दैट एक यूनिट x का इंक्रीज कर दे, तो उसने यहाँ पे 6 यूनिट कर दिए सेक्रीफाइस। नेक्स्ट में उसने कितने किए? 4 यूनिट, फिर 2, फिर 1, मीन्स सब्स्टिट्यूशन जो हो रही है वो कम होती जा रही है। अब कुछ एजम्पशंस है इसकी। एजम्पशन क्या है? सबसे पहले ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किस के ऊपर बेस है? यूटिलिटी एनालिसिस के बेस पे ही चल रहा है, लेकिन ये कौन सी यूटिलिटी ले रहा है? कार्डिनल नहीं, न्यूमेरिकल नहीं बोल रहा। ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स प्रेफरेंस या रैंकिंग को ध्यान में रखेगा जब वो गुड्स के कम्बिनेशन की बात करेगा। रैशनल कंज्यूमर, इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं सोशल साइंस है एंड ह्यूमन बीइंग रैशनल। लाइकवाइज ये सबसे पहली असम्पशन हर एनालिसिस की आ जाती है कि कंज्यूमर इज रैशनल ह्यूमन बीइंग, लॉजिकल बेस पे चलता है, सभी चीज़ों को ध्यान में कैलकुलेशन करके चलता है। टू कमोडिटीज। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम टू कमोडिटीज को लेकर चलते हैं। टू कमोडिटीज क्यों? वी हैव एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस, तो कॉम्बिनेशन बनाना इट इज़ रियली ईजी। अगर हम बोलेंगे 3 गुड्स की कॉम्बिनेशन है तो वो क्या 3D ग्राफ बन जाएगा? इट विल बी डिफिकल्ट। जनरली हम स्टार्ट करते हैं टू कमोडिटी से। नॉन स्टेटी। नॉन स्टेटी मीन्स कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हम चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि फुली सेटिस्फाइड हो गया। सो कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच द पॉइंट ऑफ स्टेटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये असम्पशन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा हमेशा डिमिनिशिंग ही होगा। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के केस में हम ये कहते हैं अगर कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन प्रेफर कर रहा है ओवर बी, तो आने वाले टाइम पे ये कभी नहीं होगा कि उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाए, वो बी को ए के ओवर कभी नहीं प्रेफर करेगा। ही विल ऑलवेज प्रेफर ए ओवर बी, लाइफ लॉन्ग ही ऐसे चलेगा। ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के केस में से वी हैव 3 कॉम्बिनेशंस ए, बी एंड सी। अगर कंज्यूमर ए को प्रेफर कर रहा है बी से एंड बी को प्रेफर कर रहा है सी से, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है? ए को सी से प्रेफर कर रहा है। लाइकवाइज अगर हम प्रेफर कर रहे हैं से मैंगोज को, मैंगोज प्लस ऑरेंजेस, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक जिसमें हमने एक मैंगो का यूनिट लिया, 10 ऑरेंजेस के यूनिट लिए, फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कम करते गए। अगर हम मैंगोज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ऑरेंजेस से एंड वी हैव अनदर कॉम्बिनेशन ऑरेंजेस प्लस बनानास, अब उस केस में बनाना से हम ऑरेंजेस को प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मैंगोज को हम बनाना से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मीन्स हमारा जो सब्स्टिट्यूशन का रेट होगा हमेशा मैंगोज की तरफ डाइवर्जन होगी, बनानास की तरफ कम होगी। प्रेफरेंस फॉर मोर। कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा, हमेशा वो यही प्रेफर करेगा ज़्यादा चीज़ उसे मिले। दैट इज़ वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो कम करता जाता है, डिमिनिश होती जाती है। एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस। इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस मीन्स कि वो जो प्रेफर कर रहा है गुड्स इट इज़ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किससे है? वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम लेवल एंड प्राइस ऑफ गुड्स। मीन्स उसकी जो प्रेफरेंस है इनकम से चेंज नहीं हो रही है एंड प्राइस ऑफ गुड्स के चेंज होने के साथ वो चेंज
नहीं हो रही है. So these are assumptions of inductance curve analysis, and we will continue with the same topic in our next lecture. Thank you.